हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 27 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर गंगा जल बंटवारा संधि 1996 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, the treaty ensures a minimum level of water flow to Bangladesh during the dry season. And second, Jharkhand plays a crucial role in the implementation and negotiation of Ganga water sharing treaty. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। झारखंड इसके मध्य ऐसा कोई क्रूशियल रोल प्ले नहीं करता है। आप यहाँ देख सकते हैं। So 1996 Ganga Water Sharing Treaty is a significant agreement between India and Bangladesh aimed at resolving long-standing disputes over the allocation of Ganga's river water. So the treaty guarantees that each country will receive 35,000 cubic of water in alternate 10-day cycles during the critical dry period from March 11 to May 10. It outlines specific water sharing arrangements at the Farakka Barrage, a critical point where Ganga River enters Bangladesh from India. So Farakka Barrage के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। The Ganga Water Sharing Treaty is primarily an agreement between the central government of India and Bangladesh. And the negotiations and implementation of the treaty are managed at the national level involving the governments of India and Bangladesh. Next question की ओर। India dropped to which place in 2023 from 8th position in 2022 in terms of FDI inflows? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से गिरकर 2023 में किस स्थान पर आ गया है। आपके ऑप्शंस हैं 16th, 19th, 15th या फिर 12th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो 2023 में जो भारत की रैंकिंग है वो हो गई है 15। आप यहाँ देख सकते हैं India dropped to 15th spot in 2023 from 8th position in 2022 in terms of FDI inflows. So FDI flows to India declined by 43% in 2023 to $28 billion. India remained in the top 5 for both kind of FDI greenfield projects and international project finance deals. So India emerged as the fourth largest host country for greenfield project announcements in 2023. इसके बावजूद जो रैंकिंग है भारत की वो 15th पोजीशन पर आ गई है। 2022 की बात करें तो उसमें भारत की रैंक थी 8। इसके साथ ही इंडिया ने रिटेन किया है सेकेंड रैंक इन द वर्ल्ड फॉर एफडीआई इन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट डील्स। और आपने देखा कि फोर्थ रैंक है इनकी भारत की एज रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई अनाउंसमेंट्स इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In June 2024, India announced a medical e-visa facility to which country citizens? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जून 2024 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर म्यांमार।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो भारत में ये घोषणा की है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा प्रदान करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं India and Bangladesh signed 10 pacts on defense, digital partnership, maritime cooperation, etc. And India will also start a medical e-visa facility for Bangladesh citizens. India will open a new consulate in Rangpur, Bangladesh for people in the northwestern region of the country. इसके साथ ही India and Bangladesh signed agreements on digital partnership, green partnership, maritime cooperation, and blue economy, space cooperation, railway connectivity, oceanography, defense, strategic operation studies, and etc. So ये सारी वो डिफरेंट फील्ड्स हैं जहां पे भारत और बांग्लादेश के मध्य अग्रीमेंट साइन हुआ है। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Pradeep Singh Kharola has become new Director General of which of the following agencies? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रदीप सिंह खरोला निम्नलिखित में से किस एजेंसी के हाल ही में नए महानिदेशक बनाए गए हैं? आपके ऑप्शन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आपको बताना है कि इन एजेंसीज में से हाल ही में किसका डीजी बनाया गया है प्रदीप सिंह खरोला को। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बने हैं एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल। आप यहाँ देख सकते हैं सो प्रदीप सिंह खरोला हैज रिप्लेस्ड सुबोध कुमार सिंह एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी and he is a 1985 batch Indian Administrative Services officer. Appointments Committee of the Cabinet has approved assignment of additional charge of the post of DG NTA and Ministry of Education to Pradeep Singh Karola. So NTA की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसको स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 2017 में टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एडमिशंस एंड रिक्रूटमेंट। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। State of Global Air 2024 report is published by which of these organizations? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है WHO, IQ एयर, IPCC, या फिर नन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इनमें से ऐसी कोई संस्था नहीं है जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट को जारी करती है। आप यहाँ देख सकते हैं दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड यूनिसेफ and it examines global air pollution trends from 1990 to 2021, highlighting significant health impacts. So almost the entire global population resides in area with unhealthy level of PM 2.5 pollution, which refers to fine airborne particles less than 2.5 micrometers in diameter. So low and middle income countries typically face 1.3 to 4 times higher level of PM 2.5 exposure. And air pollution exacerbated COVID-19 outcomes by compromising immune systems and causing lung inflammation and oxidative stress. So according to this report, air pollution has become the second leading global risk factor for death, surpassing tobacco and diabetes and trailing only by hypertension. और आपने देखा कि ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज की गई है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में इसका सहयोगी जो
संगठन रहा है वो है यूनिसेफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एनटीए इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड, एनटीए conducts entrance examination for admission to all higher educational institutions in India। और यहाँ पर आपसे एनटीए से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द नेट, जिसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, एंड नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कंट्रोवर्सी highlights systemic failure and poor policy implementation over the years, and recurrent paper leaks, exam cancellations, incorrect results, and unexplained grace marks have eroded trust in NTA, जिसकी वजह से ये अभी काफी चर्चा में रहा है। एनटीए की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, and it conducts entrance examination for admission into higher educational institutions, not all institutions in India। ये आप ध्यान रखेंगे। So its functions include identifying partner institutions for online examinations, creating a question bank, fostering research and development, collaborating internationally, and conducting examinations as assigned by government ministries and departments। ये इसके फंक्शंस हैं जो ये करता है। एनटीए की बात करें तो आपने देखा कि ये कार्य करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसको एस्टैब्लिश किया गया था नवंबर 2017 में। वर्तमान समय में इसके डीजी हैं प्रदीप सिंह करुला और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।